انجمن پٹنہ بہار سے میں درخواست پیش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے معروفی کلمات سے ہم خوابیدہ قوم کو بیدار فرمائیں اس شعر کے ساتھ کہ آتش کی آبرو ہوں میں غالب کی شان ہوں، آتش کی آبرو ہوں میں غالب کی شان ہوں، مجھ سے ادب سے ملیے میں اردو زبان ہوں، مجھ سے ادب سے ملیے میں اردو زبان ہوں۔ حضرت والا مالک کا نعم صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات کرنا۔ بے شک اللہ کا اللہ کرم اور شکر ہے کہ آپ اردو بیداری کانفرنس اور قومیت یقین کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں، اور اس جلسے کے انعقاد کرنے میں جن لوگوں نے اہم رول ادا کیا، حافظ قاری عبدالرحمان صاحب معتمد مدرسہ احمدیہ تعالیٰ جنرل سیکرٹری نیوز اردو ضلع کھگڑیہ، حافظ محمد احتسام الحق صاحب سیکرٹری مدرسہ احمدیہ دارالعلوم اسلام پور کھگڑیہ، حضرت مولانا مناظر صاحب لطیف امام و خطیب جامع مسجد اسلام پور کھگڑیہ، حافظ محمد شاہد انور صاحب، حافظ شہزاد صاحب اور اسلام پور کے تمام باشندگان جن لوگوں نے اس جلسے کے انعقاد میں تعاون کیا ہے، علماء کرام جو ہمارے اس کھگڑیہ ضلع سے اور دیگر اضلاع سے تشریف لائے ہیں، سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور خواتین و حضرات، اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ آپ لوگوں نے اس خندق میں اپنا قیمتی وقت دے کر ابھی تک تشریف فرمایا۔ اس جلسے کا عنوان آپ دیکھ رہے ہیں اردو بیداری اور جینتی کانفرنس۔ قبل اس کے کہ میں اس پر بات کروں، میں کچھ دینی بات کی طرف آپ کو اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا انتم الاعلیٰ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو دنیا میں سربلند رہو، اور سربلندی کے لیے اللہ نے جو بیان متعین کیا ہے اس میں جو اللہ کے احکامات قرآن میں بتائے گئے ہیں اور احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنو، اگر ہم زندگی کے اندر نماز روزہ حج زکوٰۃ کی پابندی کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی پابندی کر رہے ہیں تو ہم دنیا میں کامیاب ہو گئے، جنہیں وہ رسوا نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اس جلسے کے ذریعے آدھی آزادی بھی ہماری نمائندگی کر رہی ہیں اور ہمارے نوجوان ساتھی، نوجوان دوست اور علماء کرام کی تمام لوگ موجود ہیں۔ آج اس کا عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم سب نماز پڑھیں گے۔ ہماری خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری بچیاں ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ دنیا میں کامیابی کے لیے جیسے ہمیں سانس لینا ضروری ہے، جیسے کھانا کھانا ضروری ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان اور جنات کا پیدا کرنے کا مقصد اللہ نے عبادت بنایا ہے، اور عبادت کیا ہے؟ ہر وہ کام عبادت ہے جو اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو۔ اگر اس کا عمل ہو رہا ہے تو سمجھیے کہ بال بچوں کی روزی حاصل کرنا، انہیں پرورش کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور دنیا کے جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اگر سنت کے مطابق ہے تو عبادت ہے۔ دوسری بات ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو بھی مسلمان بھائی ہیں وہ مسلمان دکھیں۔ ہم مسلمان ضرور ہیں، کلمہ ضرور پڑھ لیا ہے اور اللہ کے حکم کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہم دکھتے نہیں ہیں۔ اسی لیے ہم کو ظاہری اعتبار سے بھی یہ دکھے کہ میں مسلمان ہوں، اور باطنی اعتبار سے بھی ہم مسلمان ہوں۔ دنیا میں کبھی گلا
के तहत हम लोग जमा हुए हैं वो उर्दू बेदारी कॉन्फ्रेंस है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया इकराम तशरीफ लाए, सभी को जिन लोगों को अल्लाह ने सहीफे दिए, किताबें दी, उस खित्ते की जुबान में वो सहीफे लाते हैं, इसलिए कि अपनी मादरी जुबान में हम ज़्यादा समझ सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुआ तो मक्का की जुबान अरबी थी, तो कुरान का जो है नज़ूल अरबी में हुआ, इसीलिए हम मादरी जुबान हमारी उर्दू है। उर्दू जुबान में हमारे जितने तहजीब है, हमारे सकाफत है, पोशीदा है। इसीलिए हम चाहेंगे कि हम अपने बच्चों को बुनियादी तालीम, जब तक स्कूल जाने लायक बच्चे नहीं हैं, तो उन बच्चों को घरों में हमारी माएँ बहनें, हमारे गार्जियंस हजरात बच्चों को उर्दू के जरिए तालीम दें और कुरान की तालीम दें। दोनों तालीम घरों में देकर तब जिस स्कूल में भेजना हो और जिस जुबान में तालीम देनी हो देंगे। इस पैगाम को लेकर मैं पूरे बिहार में घूम रहा हूँ। अगर आपने बुनियादी तालीम उर्दू से बच्चों को नाबलद रख दिया तो बच्चे इस्लामी तहजीब से नाबलद रह जाएंगे, कुरान के तराजी से नाबलद रह जाएंगे और अहादीस के जो तराजी में उससे नाबलद रह जाएंगे। इसीलिए हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप बच्चों को स्कूल जाने से पहले घरों में कुरान की तालीम और उर्दू की तालीम दें और कोई बच्चा ऐसा नहीं रहे जो तालीम याफ्ता न हो। तालीम एक ऐसा रास्ता है कि हम जिंदगी में इफ्लास को, गुर्बत को, पसमानदी को दूर कर सकते। एक एक बच्चे को तालीम दिलाइए और आप देखिए जिन लोगों ने तालीम हासिल कर लिया उनकी जिंदगी के अंदर इनकलाब आ गया। तो पहला काम उर्दू और कुरान की तालीम बच्चों को। जब तक आप कुरान की तालीम हासिल नहीं करेंगे, कुरान आफाकी किताब है, ये सहीफा है और इसमें जो बातें बताई गई है दुनिया के कहीं पर ये बातें नहीं है। जैसे माँ के पेट में बच्चे की जो तकलीफ होती है और किन किन मराइल से वो उसके शक्ल में, हड्डी के शक्ल में, लोथरे के शक्ल में और बच्चा एक अच्छे खूबसूरत शक्ल में पैदा होता है, ये अल्लाह की कुदरत है। और जो तरीका कुरान में बताया गया है पैदाइश का, किसी किताब में दुनिया के अंदर नहीं है। इसीलिए कुरान की तालीम लाजमी तौर पर हम बच्चों को दें, उसके बाद जहाँ भी तालीम देना हो भेजें, इसके लिए कोई कायद बंद नहीं है। दूसरी बात मैं बता दूँ कि आज इस बैनर तले अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के बैनर तले हम जमा हुए हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू का क़याम 1903 में अलीगढ़ में हुआ था और वहाँ से सफर करके दिल्ली दफ्तर हुआ और इसके शाखाएं पूरे हिंदुस्तान में हैं और उसी की एक शाख बिहार में है। और अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के कोशिशों और ख्वाहिशों से आज बिहार में 1980 में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा मिला, जिसके तहत आज पूरे बिहार में उर्दू को रोजी रोजगार से जोड़ा गया। और उस वक्त 1600 शिक्षण किए गए थे, जिसमें उर्दू पतराजी और उर्दू ट्रांसलेटर और शिक्षण ट्रांसलेटर की तकरीर हुई। अभी हाल के दिनों में मौजूदा वज़ीर आला नीतीश कुमार ने 1700 शिक्षण किए हैं, जिसके नतीजे में आज बहालियाँ 2-2.5 हो चुकी हैं और 1076 की बहाली होने वाली है। पहले मदरसे कितने थे? 1127 मदरसे बिहार में थे और वज़ीर आला नीतीश कुमार ने 2459 मदरसे को मंजूरी दिया है 2011 में। और उसमें ये शर्त रख दिया था कि जो मदरसे 5 कट्ठा जमीन और 6 कमरे होंगे उनको दिया जाएगा। 8 से 14 को पैसे मिल गए हैं और बाकी मदारिस जिसको पैसे नहीं मिले हैं। 1646 मदरसों का रिपोर्ट सरकार में जा चुकी है और बहुत जल्द मैंने खत लिखा है वज़ीर आला बिहार को, इंशाअल्लाह उसमें जो शर्त पूरी करेंगे उनको भी सही तनख्वाह सरकार
के दी जाए। ये सब काम हो रहा है। इस तरह से पहले क्या था, 5,000 उर्दू मकाते थी जहाँ पर उर्दू की तालीम दी जाती थी। नीतीश कुमार वजीराला बिहार में तमाम जो है जितने भी मदरसे हैं, ये स्कूल हैं, 73,000 प्राइमरी मिडिल स्कूल में लाजमी तौर पर एक उर्दू टीचर बहाल करने का फैसला किया, जिसके नतीजे में आज तकरीबन 45,000 उर्दू टीचर बहाल हो चुके हैं। अब तो हमारे उलमा देवबंद के लोगों ने बीएड कर दिया है और बीटेक के लिए स्टेट पास किया है, उन लोगों में बहालियां हुई है अभी हाल ही में बहुत जल्द। इसलिए हम सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तालीम दें ताकि वो लोग रोजी रोजगार से जुड़ सकें। इस तरह से पहले क्या था, पहले सिर्फ 3,000 स्कूल सेकेंडरी इंटर थी, अभी 8,500 सेकेंडरी स्कूल खोले गए। 30,000 स्कूल थे बिहार में, अभी 73,000 प्राइवेट स्कूल खोले गए और इसमें 45,000 में बहाली हो चुकी है और बाकी स्कूलों में बहाली के लिए कोशिश की जा रही है। इस तरह हमारे काफी तादाद में हमारे तलबा और तालबात जिन लोगों को मेरे तालीम हासिल किया है, उनको रोजगार से जोड़ा जाए। हमारे जो महिलाएं हैं, हमारे माएँ बहनें हैं, उनके लिए भी रिजर्वेशन का पॉलिसी लागू हुआ, जिसके नतीजे में आज नगर निकायों में, पंचायत में, जिला परिषद में 50% हमारे माएँ बहनें उस पौधों पे आ गई और सरकार ने औरतों के लिए 35% नौकरियों में रिजर्वेशन दिया है, जिससे काफी तादाद में लोगों को नौकरी मिल रही है। इस तरह से काम हो रहे हैं और हम सबको कोई भी निगेटिव बात नहीं सोचना है, नहीं ये करना है, जायज मुतालबात को सही प्लेटफॉर्म पर रखना है। इसलिए हम लोग अभी जो दौर गुजर रहा है, जनाब अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब जिंदाबाद, जनाब अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब हम सबके रहनुमा कैसा हो, जनाब अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब जैसा हो, हम सबके रहनुमा कैसा हो, जनाब अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब जैसा हो। माशाअल्लाह ये मर्द कलंदर साहिब मर्द मुजाहिद ने जो आज इस्लामी स्टेज पर तरक्की उर्दू अंजुमन पर जो जानकारियां दी है, हमें और आपको 10 साल के अंदर भी ये जानकारी मुयस्सर नहीं दी, जिसके मुकाबले में हम लोग अंधेरे में हैं। अब कौन को जरूरत है ऐसे साहिब मर्द मुजाहिद सिफते मर्द खुदा का कि अगर ये इंशाअल्लाह इस तरह बेदारी लाएंगे तो हम लोग बेदार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और मदरसे में पहले क्या था, मदरसों में जो है सिर्फ मजहबी तालीम दी जाती थी, ये जो स्कूली किताबों को शामिल नहीं किया है। मुझे चेयरमैन में अच्छे से काम करने का मौका मिला। मदरसों के अंदर 1 से 8 तक मजहबी किताब के साथ SCERT बुक लागू किया गया। 9th 12th मतलब फौकानिया मौलवी में NCERT उर्दू में साइंस मैथ तमाम किताबों को छपवा कर मदरसों तक पहुँचाएगा। मदरसों में फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन इंतजाम किया गया। अब मदरसे के बच्चे स्कूल के बच्चों से किसी तरह पीछे नहीं थे। अगर सही ढंग से तालीम दी जाए तो एक बच्चे भी फौकानिया मौलवी पास करके BPSC और UPSC में एग्जाम दे सकते हैं। इस लायक उनको मौका मिल रहा है, दिया जाएगा। पहले हमारे असातिज़ा को छोटी छोटी तनख्वाह थी। मुझे चेयरमैन बनने का मौका मिला, वज़ीर-ए-आला बिहार को मैं बुला कर ले गया था कटिहार पूर्णिया में, और पूर्णिया में उन्होंने 37 तनख्वाह 15% तनख्वाह का इजाफा और नए टीचरों को वेतनमान दिया। मदरसों में पेंशन लागू किया गया। नए भी जितने भी मदारिस होंगे जो उनको ग्रांट मिलेगा तो जो तनख्वाहें पा रहे हैं टीचर स्कूलों में वो कई तनख्वाहें मिलेगी और उनको भी पेंशन मिलेगी। इसलिए नाउमीद मत होइए। कुरान में अल्लाह ने कहा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होइए। बेशक कि आप लोगों को जो भी मदरस रह गए हैं जिसको ग्रांट नहीं मिली है, उन लोगों को कैबिनेट डिसीजन करके 108 करोड़ रुपया पास कर दिया गया था। शर्त पूरी करना है कि 6 कमरा 5 कट्ठा जमीन। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। जनाब अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब, जनाब अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब, मैं और तमाम लोगों की तरफ से मेरी दिली ख्वाहिश है कि खुदारा ऐसे साहिबे शख्सियत को फिर से
मदरसा बिहार स्टेट का चेयरमैन बना दे, इसलिए तो मैं जो शेर पढ़ा था कि अल्लाह के करम से बुलंदी हुई नसीब। अल्लाह माशाअल्लाह देखिए, मौलाना मंसूर साहब, जनाब हाफिज अतीकुर रहमान साहब, मौलाना मुजाहिद इस्लाम साहब और जनाब हाफिज एहतशाम साहब और हाफिज कमाल साहब, तमाम रफ़क़ाए बज़्म की तरफ से जनाब अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब, साबिक़ चेयरमैन बिहार मदरसा स्टेट एजुकेशन बोर्ड पटना के साबिक़ चेयरमैन के माशाअल्लाह इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं शेर के साथ आपका इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अल्लाह के करम से बुलंदी हुई नसीब, अल्लाह के करम से बुलंदी हुई नसीब, मुझको मेरे ज़मीर ने गिरने नहीं दिया, सारे ही झूठ मेरे मुखालिफ में थे खड़े, एक सच था जिसने मुझको बिखरने नहीं दिया, एक सच था जिसने मुझको बिखरने नहीं दिया। अल्लाह इंशाअल्लाह ये 1646 मदारिस ऐसे हैं जिन लोगों ने लंबे अरसे से खिदमत किया है। कल आने से पहले मैंने एक लेटर वज़ीर आला बिहार को, वज़ीर तालीम को और चीफ सेक्रेटरी को लिखा हूँ कि ये 1646 की जिसकी रिपोर्ट गई है इस पर जो शराइत पूरी करने जल्द से जल्द को ग्रांट में शामिल की। माशाअल्लाह इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। और हम सब आखिर में मैं कहाँ रुकता हूँ और सफर की आवाज से मुझको जाना है बहुत आगे आगे परवास से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और शेर में फुलाता आपको इनायत हो इनायत। सबक पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा कम से कम दुनिया में इमामत का। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों ने मौका दिया बोलने के लिए और आप लोगों ने सुना, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। जितने उलमाए किराम तशरीफ फरमाए सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात करता हूँ। माशाअल्लाह हज़रत वाला से दरख्वास्त है कि तमाम बच्चों के नाम आ रहे हैं आपके सामने, उनको मेडल से नवाजें। आप बैठ बैठे